everybody, I am Dr. Devyani and you are watching Epistasis. So this is the part 2 video of the quick revision of this chapter respiration in plants जो क्लास 11 में बायोलॉजी सिलेबस में है. So अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो don't miss it, please go and watch the part 1 of this video. Okay. So without wasting much time, let's get into the video. So aerobic respiration. So aerobic respiration जो anaerobic respiration से अलग है. Mainly anaerobic respiration के end में जो pyruvic acid form होता है, that ये पूरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. तो इसको ट्रांसपोर्ट होके पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड है, जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होगी. एंड ये एरोबिक रेस्पिरेशन का 2 मेन इवेंट्स है. नंबर 1 इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी ग्लूकोज या फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, एंड इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस. फाइनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटिन्यूअसली रिमूव होगा फ्रॉम द सिस्टम, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड ये प्रोसेस होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की रिलीज and carbon dioxide formation, all this and complete oxidation of carbohydrate will occur in this step. That means matrix of mitochondria के अंदर होगी. Next event of aerobic respiration is passing on the electrons removed as a part of hydrogen atom. जब hydrogen atom release होगी तब as a part of hydrogen atom release electrons भी remove होंगे, and ये electrons finally molecular oxygen तक जाएगा, क्योंकि oxygen is the final acceptor of this hydrogen atom, and simultaneously ATP synthesis होगा, right? So all this process, that means electron transfer through electron transport system and ATP synthesis. So all this will occur in the second event of aerobic respiration, and it will happen in inner membrane of mitochondria. So anaerobic respiration होगा cytoplasm में, aerobic respiration होगा mitochondria में. aerobic respiration का भी एक event होगा, that means release of carbon dioxide, main is the यही event है, ये होगा matrix में, and ATP synthesis होगा inner membrane of mitochondria में. Okay, so come to the first event, that is carbohydrate जो है वो glycolytic catabolism के बाद, that means glycolysis में जिसका catabolism होता है उसके बाद फॉर्म करता है pyruvic acid और pyruvate. Now ये जो pyruvate है ये coenzyme A and NAD plus के हेल्प में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है एंड फॉर्म करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, carbon dioxide, NADH and H+. Okay, so this will occur first. So this is the first step of aerobic respiration. Pyruvate plus carbon coenzyme A, NAD plus के presence में, and इसमें जो enzyme काम आता है that is pyruvic dehydrogenase. So pyruvate dehydrogenase enzyme के presence में, and another important metal is used, that is magnesium. इस दोनों के presence में acetyl coenzyme A, carbon dioxide and NADH plus H plus will form. Okay, so यहाँ पे जो NADH है ये दो मॉलिक्यूल्स NADH प्रोड्यूस होगा. वाई? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट रिलीज प्रोड्यूस होंगे, एंड ईच पाइरुवेट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए एंड 1 molecule of NADH. That is why 2 molecules of pyruvate will form 2 molecules of pyruvate from 1 glucose. Okay, so 2 molecule NADH इसमें form होगा. So this is the first step of aerobic respiration, and इसमें जो acetyl CoA form होता है ये directly चला जाएगा tricarboxylic acid cycle और Krebs cycle में. Okay, so this is the part of the first event of aerobic respiration, and ये जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, he is Hans Krebs. That's why the cycle is called Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. Okay, so it's TCA cycle और tricarboxylic acid cycle. इसमें क्या होता है, तो एसिटाइल कोए जो फॉर्म हुआ पाइरुविक एसिड से, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन
ये फॉर्म करता है साइट्रिक एसिड। इसमें जो एंजाइम काम आता है दैट इज साइट्रेट सिंथेज। ओके, एंड इसमें वन मॉलिक्यूल यहाँ पे कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है एंड साइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। नाउ साइट्रिक एसिड आइसोमेरिज्म के थ्रू फॉर्म करता है आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट का मल्टी स्टेप डी कार्बोक्सिलेशन होता है एंड फाइनली प्रोड्यूस होता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनल कोए फॉर्म करता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड फॉर्म करके फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म रीजेनरेट करता है थ्रू ऑक्सीडेशन। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइकिल, क्योंकि लास्ट में सक्सिनल कोए से फिर से OAA प्रोड्यूस होगा ताकि ये कंटिन्यूअस ये साइकिल चलता रहे। एंड इस स्टेप में एक GTP मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होता है। ओके, नाउ दिस GTP मॉलिक्यूल विल रिलीज एंड इट इज रिलीज्ड इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये GTP मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन ए कपल रिएक्शन। सो ये GTP मॉलिक्यूल एक कपल रिएक्शन है जहां पे GTP यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा एंड GTP विल कन्वर्ट टू GDP एंड ADP विल फॉर्म ATP। ओके, सो यहाँ पे 3 टाइम्स ये पूरा साइकिल में 3 टाइम्स NAD प्लस यूज होते हैं, यूटिलाइज होके NADH प्लस H प्लस फॉर्म करते हैं एंड FAD जो है वो सिंगल टाइम FAD यूज होके FADH2 फॉर्म करते हैं। वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज ये NADH एंड FADH बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट इवेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 3 टाइम्स TCS साइकिल से NADH फॉर्म होता है एंड 1 टाइम FADH2 रिलीज होता है एंड दे आर कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई NAD plus and FAD plus is continuously required for this TCA cycle. Okay, so final what will be the reaction? Pyruvate in the present 4 NAD plus चाहिए plus 1 molecule of FAD plus चाहिए, 2 molecules of H2O and ADP plus PI, तब ये कन्वर्ट करेगा 3 molecules of carbon dioxide 4 NADH. So ये 4 NAD plus will convert to 4 NADH plus 4 H2H plus and FAD plus will convert to FADH2 and ADP plus PI will form ATP. So this is the end and whole reaction of TCA cycle. Now इस cycle को अगर आप लोगों की बुक में जो फिगर दिया हुआ है वहाँ से पढ़े तो क्या होता है, पाइरूवेट जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है ये in the presence of NAD and coenzyme A फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड NADH एंड H प्लस फॉर्म होता है। सो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये इन द विथ ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, दे विल फॉर्म 6 कार्बन साइट्रिक एसिड। ओके, एंड यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, NAD यूज होके NAD प्लस NADH प्लस H प्लस फॉर्म करेगा एंड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड फॉर्म होगा। सो ये मल्टी स्टेप है, दैट्स व्हाई डॉटेड लाइन इज हियर। सो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड फॉर्म होगा दैट इज 5 कार्बन। यहाँ से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, NAD फिर से NAD प्लस फिर से यूज होगा एंड JDP विल फॉर्म GDP विल फॉर्म GTP। ओके, एंड फाइनली सक्सिनिक एसिड फॉर्म होगा। ये सक्सिनिक एसिड फिर से एक 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड फॉर्म करेगा एंड इसमें अगेन FAD यूज होगा एंड दिस मैलिक एसिड विल कन्वर्ट टू ऑक्सालोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन ऑक्सालोएसिटिक एसिड एंड यहाँ पे फिर से NAD प्लस यूज होगा। सो दैट्स व्हाई see that NAD plus is used 3 times here, here and here. So 3 molecules of 3 times NAD plus will be used and here also. So after if you are writing the whole reaction of TCA cycle, then we will start from 1, 2, 3 and 4. So that's why 4 NAD plus is required and 1 FAD plus will be required for it, and finally 4 molecules of NADH and H plus will form and 1 molecule of FADH or 2 is formed and 3 molecule of carbon dioxide, 1 molecule here,
one here and one here. So 3 molecules of carbon dioxide will be released. So this is the first event of aerobic respiration जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, जहां का मेन काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना एंड हाइड्रोजन आयन जनरेट करना. सो हाइड्रोजन आयंस भी बहुत सारे हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 NADH के साथ 4 हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज होंगे, राइट. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट भी हो रहा है. ओके, सो दिस इज Krebs cycle and this is the first step of aerobic respiration, right? Now come to the second step, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा हर टाइम जब H+ रिलीज होगी तब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएगा एंड साइमल्टेनियसली ATP विल बी जनरेटेड, राइट. सो इट इज कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में हमने पढ़ा है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ATP. सो वहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बिकॉज वहां पे लाइट एनर्जी यूज होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. ऑल द प्रोसेस विल हैपन in the presence of sunlight, so that's why photophosphorylation will be used there, and here it is called oxidative phosphorylation. Why? We will come into that later. Okay, now utilization of this NADH and FADH2 and finally ATP will be synthesized. So this NADH and FADH2 are the main electron donor. Okay, so ये जो NADH and FADH2 होगा ये ऑक्सीडाइज्ड होगा थ्रू ETS एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2O. So ये जो हाइड्रोजन आयंस का ये इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेप्टर है, फाइनल एक्सेप्टर है, दैट इज ऑक्सीजन एंड ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन दे विल फॉर्म water molecule. Okay, and ये पूरा प्रोसेस होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. Now electrons from NADH produced in the matrix during TCA. तो TCA साइकिल के में जो भी NADH फॉर्म हुआ ये अभी कहाँ है, मैट्रिक्स में है. इसको इनर मेम्ब्रेन में ले जाना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ले जाना है. सो यहाँ पे ये फुल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं. सो 5 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड NADH डिहाइड्रोजिनेज जो NADH को ऑक्सीडाइज करेगा. सो दैट इज ऑक्सीडाइज एंड ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन एट इनर मेम्ब्रेन. सो ऐसे ही वो ये जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होके इनर मेम्ब्रेन में आ गया एंड ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया यूबिक्विनोन में. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1. अगेन कॉम्प्लेक्स 2 इज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2. सो यहाँ पे FADH2 इज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 2. सो इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन TCA साइकिल. सो TCA साइकिल में जो FADH2 सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 प्रोड्यूस हुआ था ये भी ऑक्सीडाइज्ड होके यूबिक्विनोन में अब उसका इलेक्ट्रॉन दे दिया and at inner membrane inner. So this is a complex 1. So complex 1 is NADH dehydrogenase and FADH2 is complex 2. Okay, so both oxidize होके यूबिक्विनोन में आ गया. Now ये यूबिक्विनोन reduce होके यूबिक्विनोल फॉर्म करेगा and the electron is again transferred to cytochrome C via cytochrome BC1 complex. Finally cytochrome C में जाएगा. Now cytochrome C is the complex 3. Okay, so what is cytochrome C? They are nothing but small protein. They are attached with the inner membrane and their function is to just carry the electrons. So they are mobile carriers. Now ये इलेक्ट्रॉन अभी जाएगा साइटोक्रोम A and A3 में. इसमें 2 कॉपर सेंटर भी है and that is complex 4. So complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4 ये पूरा पाथवे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स 5 एंड दैट इज ATP सिंथेस. सो ये जो इलेक्ट्रॉन पास होता है फ्रॉम कैरियर टू अनदर via complex 1 to 4 they are coupled with. so 1 2 3 4 sequentially होता है. 1 2 इकट्ठे आते हैं 3 में, 3 से they are going to 4. but ये जो complex 5 है ये simultaneously चलता है and the complex 5 is made up of ATP synthase, the enzyme which is producing ATP in the presence of ADP and inorganic phosphate. okay, इन दोनों को ज्वाइन करके ATP जनरेट करेगा and it will
डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर. अगर इलेक्ट्रॉन डोनर NADH है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होगी. अगर इलेक्ट्रॉन डोनर FADH2 है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होगी, राइट, डिपेंडिंग अपॉन विच हु इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, NADH और FADH2, राइट. सो ये जो फुल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन का, जिसमें ATP फॉर्म होता है, इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पे भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था, राइट. सो द मेन रोल इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन. सो दिस इज द फर्स्ट रोल. सो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेगा एंड फाइनली कन्वर्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स में. And number 2, it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Continuously जो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, वहां से प्रोटॉन्स को ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पास ऑन करेगा. दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस विल स्टिल गो ऑन. सो ये एक बहुत ही मेजर रोल है ऑक्सीजन का, एंड दिस ऑक्सीजन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द होल रेस्पिरेशन प्रोसीड्यूर. दैट्स व्हाई we are calling that oxygen is very important for oxidative phosphorylation, right. So जो अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनर्जी कहाँ से आता है, सोलर एनर्जी से, लाइट एनर्जी से. बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये एनर्जी आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से. जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे कैरियर में जाएगा और किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज होगा, कहीं पे रिड्यूस होगा. सो ऑल दिस द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन is mainly utilized for this process, and that's why the process is called oxidative phosphorylation. राइट. नाउ ATP कैसे ATP सिंथेस कैसे ATP जनरेट करेगी, इट इज टोटली सेम विद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विच वी ऑलरेडी रीड फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस, राइट. यहाँ पे भी ATP सिंथेस का सेम है, 2 सब यूनिट है, F0 एंड F1. F0 सब यूनिट जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, ये चैनल के अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है, फॉर्म्स चैनल फॉर प्रोटॉन्स. एंड जो F1 है ये पेरिफेरल सब यूनिट है, जो जिसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा जैसे ही प्रोटॉन पास होगा, एंड फाइनली दे विल रिलीज ATP. सो इट इज टोटली सेम विद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. एंड हमने ये भी देखा है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा. सो प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ATP coupled with 2 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में 2 हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट होगा, साइमल्टेनियसली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होगी. नाउ अगर हम लोग आपके बुक से ये फिगर देखें, सो दिस इज द फिगर. ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज मैट्रिक्स, राइट. अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट में है तो ETS शुरू हो रहा है. सो NADH एंड FADH2 इज ऑलरेडी इन आवर हैंड. नाउ NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, एंड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ये, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कन्वर्ट करेगा NADH को NAD प्लस में, एंड इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा ये FMN FES के थ्रू आ जाएगा UBQ-नोन में, UBQ-नोन में. एंड ये जो हाइड्रोजन आयन है इट विल डायरेक्टली गो टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके. नाउ जो ये UBQ-नोन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसपोर्ट होकर इसको रिड्यूस करके फॉर्म कर देगा UBQ-नोल. ओके. नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स 3. UBQ-नोल से इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएगा साइटोक्रोम B, FES एंड फाइनली साइटोक्रोम C1 में, राइट. ये साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C में. So this is complex 3. So complex 2 is succinate dehydrogenase, जो क्या करेगा, ये जो FADH ये दिस इज कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, FADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके फिर से जाएगा UBQ-नोन में, राइट. सो FADH से ये फिर से UBQ-नोन में जाएगा, एंड यहाँ से ये आ जाएगा UBQ-नोल
and same thing will, so again from complex 2 electron will go to the same path of complex 3. so complex 1 से भी complex 3 में जाएगा, complex 2 से भी complex 3 में जाएगा. The difference is complex 1 is of NADH and complex 2 is of FADH2, right? So finally ये आ जाएगा. So this is complex 2 जहाँ पे succinate will convert to fumarate and again FAD and से इलेक्ट्रॉन पास होगा FES and ये ubiquinol जाएगा, वहां से ubiquinone से quinol जाएगा and cytochrome C में चला जाएगा. Okay, so this is part of complex 2. Now ये electrons complex 3 से cytochromes होके ये आ जाएगा copper center of complex 4. copper center इसके अलावा भी cytochrome A है, A3 है, इसके थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये फाइनली यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स में जा रहा है. इससे पहले भी जैसे कॉम्प्लेक्स 3 में भी प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयंस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 से भी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहा है, राइट. एंड यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको फाइनली ऑक्सीजन रिसीव कर लेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन ये दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, राइट. तो यहाँ पे जैसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है, तब क्या होगा ये थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल F0 ये आ जाएंगे मैट्रिक्स में एंड ये जो रिलीज होगा एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ ही F1 सब यूनिट का कंफर्मेशन चेंज होगा एंड दे विल फॉर्म ATP फ्रॉम ADP and PI. So this is the same thing. So outer side, so this is inner membrane, inner mitochondrial membrane, this is matrix and this is intermembrane space. यहाँ से दो हाइड्रोजन ion will transport to matrix to generate single molecule of ATP. एक मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस होने के लिए दो हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव phosphorylation, right? Now come to respiratory balance sheet. So net gain of ATP after every glucose molecule is oxidized is called respiratory balance sheet. इसका कुछ assumption है, हम कुछ assumption के basis पे ये balance sheet बनाते हैं. Assumption number 1 is it is a sequential orderly pathway functioning. That means glycolysis के बाद जो end product है वो TCA cycle में directly जाएगा, TCA cycle का end product ETS में directly जाएगा. So ये sequential होगा process. Number 2 assumption is NADH synthesized in glycolysis transferred to mitochondria and they will go to oxidative phosphorylation. जो भी NADH release हो synthesis होगा glycolysis में वो directly oxidative phosphorylation में use हो जाएगा. None of the intermediates are utilized to synthesis of any other compound. एक साथ एक ही सेल के अंदर बहुत सारे metabolic activities होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी intermediate जो फॉर्म होता है वो दूसरे कहीं कोई कंपाउंड फॉर्म करने में यूज्ड अप हो गया, ठीक है. सो ये कुछ assumption है जिसके ऊपर हमने बैलेंस शीट बनाई है. नाउ एनी ओनली ग्लूकोज इज बीइंग respired, so it is again an assumption that only ग्लूकोज का ही रेस्पिरेशन हो सकता है. सो ऑल दीज 4 assumptions are not truly valid, right? Because live cells के अंदर सारे प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है. सो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से TCA साइकिल और वहां से ETS जाएगा, इंटरमीडिएट्स बस उसी काम के लिए यूज होगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई ऑल दिस assumptions are not truly valid, but for making the balance sheet we have taken this 4 assumption. इसके अकॉर्डिंग 38 ATP molecules will be generated from one molecule of glucose. So in comparison to fermentation में only 2 molecules of ATP will generate, and in after aerobic respiration 38 ATP molecules will be generated, right? So that's why it is very 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 much advantageous for higher plants, right? Now amphibolic pathway, what is, so in general glucose is a favored substrate for respiration, but there are others too like fatty acid and proteins. So traditionally वो क्या होता है, respiration is a catabolic process because यहाँ पे complex जो molecule है ये इसको तोड़ के हम simple molecules form करेंगे and क्या होगा, ATP जनरेट होगा. लेकिन ये इसमें कुछ एनाबॉलिक प्रोसेसेस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड हियर. व्हाई? बिकॉज कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हो सकता है वो कोई दूसरे एनाबॉलिक पाथवे में जा सकता है एंड कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है एनी टाइम. सो दैट्स व्हाई
this respiration can be have catabolic and both anabolic process in it. So that's why this type of pathway is called amphibolic pathway. Okay. Next is respiratory quotient. Respiratory quotient is equal to the volume of CO2 involved by the volume of oxygen consumed. Okay, so ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी है जिसमें हम ये यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला. यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं कोई ये मेनली ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड करता है जो भी सबस्ट्रेट होता है उसमें कितने कार्बन है एंड कितने ऑक्सीजन हैं इसके ऊपर. सो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन्स आर इवॉल्व्ड फाइनली from this the substrate and the volume of oxygen is mainly consumed. Okay, so ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके so फैट्स प्रोटीन में सब कुछ अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर्स अलग है. सो दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज 1. फैट्स में मेनली रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.7. तो इसका एक एग्जांपल आप लोगों के बुक में दिया हुआ है. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स में ऑलमोस्ट इसका क्वोशिएंट होता है 0.9. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट. तो इसके बाद हम लोग नीट में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 32 इयर्स में उसको सॉल्व करेंगे. सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू एपिस्टैसिस एंड प्लीज डू watch my other videos also, and till then take care and bye.